ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ETI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਇਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਰਾਈਟ खैर मैं थोड़े नाल ना पेपर डिस्कस करांगा ETI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈਟ D ਆਲਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਝ जीके ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕੁਝ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ एक क्वेश्चन सीगा अपना at which of the following places did Mahatma Gandhi start a satyagrah against the oppressive plantation system? खेड़ा, बारडोली, चंपारण, डांडी। Now डांडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਲਟ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਡੋਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇੜਾ ਸੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਚੰਪਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਗੋ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ boycotted by the Indians because it sought to curb civil liberties of Indians, proposed the partition of India, was an all-white commission without Indian representation. Proposed measure to contain nationalism. ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਓ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰਗੂਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਆਲ ਵਾਈਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ C ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਆਲ ਵਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ recommends a daily supplement of dash of vitamin D for Indians under situations of minimal exposure to sunlight. देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ vitamin D is very important for you but vitamin D ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ sunlight exposure ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ sunlight ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ vitamin D ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ now ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ICMR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 400 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਡੇ 600 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਡੇ 1000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਡੇ 1500 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A ਮਿਨੀਮਮ 400 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ Question, next question. Which of the following is not within the jurisdiction of High Court? High Court the jurisdiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ option ਨਹੀਂ ਹੈ? It can hear appeals from lower courts. ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ High Court ਦੀ jurisdiction ਹੈ. It can issue writs for restoring fundamental rights. ਇਹ ਵੀ High Court ਦੀ jurisdiction ਹੈ. It can decide the river water disputes between the two states. ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ federal dispute ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਵਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ C ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ D ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਕੋਰਟਸ ਬਿਲੋ ਇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੁੱਡ ਬੀ C ਨੈਕਸਟ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ
ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। Next question. Which Indian women has been ranked highest in India in the Forbes ranking of 100 most powerful women in the world during the year 2020? 2020 lockdown ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, right? ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 most powerful women ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ women feature ਕਰੀ ਸੀ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਦਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ, she is a big entrepreneur and industrialist, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। Now, the answer is A. Nirmala Sitharaman featured in 100 most powerful women as per Forbes. ठीक है, तो इस question का answer सीगा A. Which article guarantees the freedom to profess, practice and propagate religion? ये तो सीधा question है, Article 25. Article 25 guarantees to each and every citizen the freedom to profess, practice and propagate religion. तो ये तो सीधा question सीगा, इसका answer है D. A bill for alteration of boundaries of states shall not be introduced in the parliament without the recommendation of the presiding officer of both houses of parliament, यानी कि speaker ते chairman, legislature of states, supreme court, president of India. The answer is जे parliament decide करता है कि किसी state दी ऐसी boundary घटानी है या ਵਧਾਣੀ है या किसी दो states ਨੂੰ merge करना है या boundary ਨੂੰ alter करना है, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ bill ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। The correct answer is D. Next, 11 July every year is observed as World Population Day. ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ question, trivia based, fact based question ਸੀਗਾ ਇਹ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ concept ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so World Population Day is celebrated every year on 11th of July. Next, social development process is primarily directed towards one among the following: economic prosperity, removal of poverty and hunger, development of rural areas, integrated women and child development. Now, एक हुंदी है economic development, एक हुंदी है social development. Now, economic prosperity economic development है, removal of poverty and hunger economic development है, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਮਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ social development. इस क्वेश्चन का आंसर है D. ठीक है, next, which one of the following body will decide the tax rates for goods and services under GST regime? ये तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा, GST Council. ठीक है, next, what option does the central government not include in the development expenditure? ये जिन्ने भी expenditure दिते गए हैं in 4 options, इन्हां चो केड़ा expenditure would not be considered a development expenditure? देखो, states ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ grants ਦਿੰਦੀ ਹੈ central government, ਉਹ development expenditure ਹੀ ਹੈ। expenditure on social and community service ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ development expenditure, expenditure on economic services ਇਹ ਵੀ development expenditure ਹੁੰਦਾ ਹੈ। defense ਦਾ ਜਿਹੜਾ expenditure ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ development expenditure ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ include ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ question ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ D. next, which of the following industries are to be given compulsory licensing? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, alcohol, tobacco, drugs and pharmaceuticals. Well, all 3 of them require compulsory licensing. ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, 5 categories of goods ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 categories of industry ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compulsory licensing ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ after 1991 also, right? Alcohol is one of them, tobacco is one of them, drugs and pharmaceutical. The answer is D, all of the above. Largest component in Punjab's tax revenue comes from, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ? GST ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, SGST ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ C. Next, the GST Compensation to States Act 2019 guarantees states a -% annual growth in their GST revenue, failing which compensation grants are provided to states by the central.
ਕਿੰਨਾ percent ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ 14%, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, Dash is a single window system for facilitating the registration process of MSME, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। MSME ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ 1/3 B। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। According to 2021 amendments, following activity can be included as a part of company's eligible CSR spend. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ CSR ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ COVID-19 ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ who are contributing towards research and development, ਮਤਲਬ contributing through funds in research and development of COVID-19, their expenditure shall be counted as their corporate social responsibility. So इस question का answer C, ठीक है। Next, dash analysis is primarily concerned with the identification of the project demand potential and the selection of optimal technology suitable for achieving the project objective. Now ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੇਮਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੋ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋ ਵਾਲਾ ਆਸਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ। ਟੈਕਨੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, integrated manufacturing cluster is an initiative of government of Punjab to develop industrial manufacturing cluster in the vicinity of eastern dedicated freight corridor. ਇਹ eastern dedicated freight corridor ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ from ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ to ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ? ਰਾਜਪੁਰਾ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, P ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, P ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ X ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ Q. Q ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆਫ P, ਠੀਕ ਹੈ। P ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ Q, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ X ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ Q ਕਰ ਰਿਹਾ। The liability to discharge consideration for such bookkeeping service is of P Limited. P ਦੀ liability ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ outsource ਕੀਤਾ ਬਸ Q ਨੂੰ। As per the CGST Act, who will be the recipient of above service? Well, P ਦੀ ਜੇ liability ਹੈ ਤਾਂ P will be the recipient of this service. Option A. Sitting fees received by director of XYZ Limited is liable for GST in the hands of, well, XYZ Limited. Company ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ GST liability ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? Next, in case of renting of land inside an industrial estate by state government to a registered manufacturing company, GST is charged. Government rent ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ land ਕਿਸੇ private manufacturing company ਨੂੰ, ਤੇ GST ਜਿਹੜਾ charge ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੈਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਅੰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, a new business was set up on 1st of July 2018 and trading activity was commenced from 1st September to previous year. Would be the period commencing from? Well, trading activity ਉਹਦੀ 1st September ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਗੀ 1 ਜੁਲਾਈ to 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਮੈਂਸ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ C ਹੈਗਾ।
AB and company received 2 lakh as compensation from CD and company for premature termination of contract of agency. Amount so received, ਇਹ ਜਿਹੜਾ amount receive ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, will it be considered a part of capital receipt or revenue receipt? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ this will be considered a part of revenue receipt. ਤੇ will it be taxable? Of course it will be taxable. ठीक है, so revenue receipt and taxable. All right, next. Payment of Bonus Act 1965 shall apply to every factory and every other establishment in which dash are employed on any day during an accounting year. Well, payment of Bonus Act ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 people employ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 20 or more persons. ठीक है, next. The term sabbatical is connected with sabbatical लेना. Sabbatical is connected with paid leave for study. मैं मान लो मैं ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਡ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ, ਬਹੁਤ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਡ ਲੀਵ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬੈਟਿਕਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यस, ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस? Private company can commence business only on receiving immediately on receiving a certificate of incorporation. Certificate of incorporation मिलन तो बाद ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮਾਰਕ ਆਊਟ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ IPO ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ C. Which of the following argument statements regarding free trade is are correct? It leads to specialization in production. Free trade ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ free trade ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪੈਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਬਾय, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। Which industrial policy resolution statement introduced the concept of joint sector in Indian industry? Joint sector, Indian ਤੇ public ਤੇ private ਦਾ joint sector ਦੀ category ਕਿਹੜੀ industrial policy resolution ਦੇ ਵਿੱਚ introduce ਹੋਈ ਸੀ? Well, IPR 1956. In which year was the small scale industries in India renamed as micro, small and medium enterprises? Well, small scale industries were renamed as MSMEs after MSME Act, and this act was enacted in 2006. Nice question. The answer is A. SIDBI stands for Small Industries Development Bank of India. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੈਂਕ ਨਾ, ਸਮਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ETI ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पेपर आपका ETI का हुआ है उसमें इंडस्ट्री रिलेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए थे, हम देखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन थे वो, क्या उनके ऑप्शंस थे और किस तरीके से आपने उनको आंसर करना था, और कैसे आपको MCQ सीरीज जो मैराथन क्लासेस चलाई गई थी CBL के द्वारा, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल। ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में, MCQs भी हम लोगों ने इसके काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। हैज़ एडेड डैश वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। ऑप्शन है आपके गिग वर्कर्स, मिग वर्कर्स, विग वर्कर्स या फिर जिग वर्कर्स। देखो, अगर आपने हल्का सा भी इस कोड को पढ़ा है ना, चाहे MCQ ट्राई नहीं भी किए हो, अगर कोड भी हल्का सा आपने वीडियो में देखा था, तो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी कि इस कोड में 3 तरीके के नए वर्कर्स को ऐड किया गया था, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी है बेसिकली वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलती थी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे। ऐसे वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ना, या फिर वो गिग वर्कर्स हैं। हमने देखा था कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो कि फ्रीलांसर्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयज़ कि भाई 9 to 6 बैठना ही बैठना है, तो फ्रीलांसर्स थे वो। और हमने देखा था थर्ड टाइप आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कि वो वर्कर्स जो कि आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ वर्कर्स ऐड किए गए थे इन द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। तो अगर आपने हल्का सा भी गिग वर्कर्स के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली ठीक हो सकता था, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है, आंसर भी जो है, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ। कि इंडस्ट्रियल लॉ में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इलीगल है, आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे एज ए वर्कर, एज ए लेबरर, तो वो पनिशेबल ऑफेंस में काउंट होगा। ऑप्शन है आपके म्यूचुअल इंश्योरेंस, B कलेक्टिव बार्गेनिंग, C लॉकआउट्स या D घेराव। देखो, ये जो 3 है, म्यूचुअल इंश्योरेंस जहाँ पर दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में मिलकर ही कुछ अमाउंट को इंश्योर करवा रहे हैं ताकि आपको डिसेबिलिटी के द्वारा या फिर रिटायरमेंट के द्वारा उसके बेनिफिट्स मिले, तो वो आप कर सकते हैं इजीली। कलेक्टिव बार्गेनिंग जहाँ पर आप ट्रेड यूनियन बनाकर एम्प्लॉयर से बात करने के लिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज़ परमिसिबल। लॉकआउट्स, ये भी स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इनको अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था कि आपको अगर स्ट्राइक करनी है, लॉकआउट्स लेकर आने हैं, तो फिर आपको हल्का सा एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। बट दीज आर लीगल, ये आप कर सकते हैं। जो D है आपका घेराव, घेराव इज बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस, जहां पर बेसिकली आप एम्प्लॉयर को इस तरीके से उसका घेराव कर लेते हैं कि वर्कर्स की डिमांड एम्प्लॉयर को माननी पड़ती है, क्योंकि उसको अपनी जान भी तो प्यारी है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो चीज़ आपकी इलीगल होगी, एंड दैट इज अंडर सेक्शन 120 ऑफ IPC इज द क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका मतलब पनिशमेंट भी इसके लिए मिलेगी, जेल भी हो सकती है और साथ में कुछ ना कुछ फाइन भी लग सकता है। तो इसका आंसर है आपका D। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज। ये मतलब बहुत सीधा क्वेश्चन आया है। हमने जब MCQ सीरीज में इसको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन EPFO का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 5 सितंबर को, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाला, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, तो उसको ध्यान में रखते ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑप्शन है आपके 2, 3, 7 और 10। तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए हमने देखा था कि या तो 10% ऑफ दी वर्कर्स या फिर एटलीस्ट 100 वर्कर्स, इनका समर्थन होना चाहिए, तभी कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर की जाती है। और मिनिमम नंबर कितने हैं इसमें? 7। इसमें 10% और 100 विच एवर इज लेस। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आंसर है इसका C। ये हमने देखा था जब हमने ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 चेतन सर ने आपसे डिस्कस किया था, फिर इसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया था इन डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेशन कोड। तो उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या अल्टीमेटली प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसे। नेक्स्ट, a premises including precincts thereof is a factory within the meaning of the Factories Act 1948।
देखो इसमें स्पेशली बताया हुआ है कि आपको इस एक्ट के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को आंसर करना है, तो आपने उसी एक्ट के हिसाब चलना है। वेयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ द पावर एंड वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इज। हमने जब फैक्ट्रीज एक्ट किया था तो हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एक तो ऐसी फैक्ट्री जहां पर हम पावर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, और दूसरी फैक्ट्रीज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हैं, और दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऐसी फैक्ट्री जहां पर विदाउट द एड ऑफ द पावर चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए ताकि वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंडर आ जाए। ऑप्शन है आपके 10 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, 15 और मोर वर्कर्स, या फिर 50 और मोर वर्कर्स। आपने ध्यान रखना है कि हमने जब फैक्ट्रीज एक्ट किया था तो विद द एड ऑफ द पावर जो था उसमें आपके 10 और मोर वर्कर्स चाहिए थे, और जो आपका विदाउट द एड ऑफ द पावर था वहां पर आपको चाहिए थे 20 और मोर वर्कर्स। तभी आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएंगे अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमने ये भी देखा था कि जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2M। इस पर हम लोगों ने MCQ भी डिस्कस किया था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका मतलब एक ही जो सेक्शन है वहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत स्टार्टिंग वाले प्रोविजंस थे ये। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्ट की डीप में जाकर पूछी गई हैं चीज़ें। हमने डीप में करी थी कि अगर आ जाए डीप में तो क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सके, बट नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो अपने हक में ही काम करी वो चीज़। तो इसका आंसर है आपका बी, 20 और मोर वर्कर्स, बिकॉज विदाउट द एड ऑफ द पावर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इन रेलवे, फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन 1000 persons आर एम्प्लॉयड, वेजेस शेल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द। अगर आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं विच इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आपकी जो सैलरी है पिछले महीने की वो किस डेट तक आ जानी चाहिए, है ना। ऑप्शंस हैं आपके 7th डे ऑफ द मंथ, 3rd डे ऑफ द मंथ, 10th डे ऑफ द मंथ, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव आएगा यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 7th डे ऑफ द मंथ। अगले महीने की जो 7 तारीख है, अगर हम अभी अक्टूबर की बात करें तो सितंबर की जो सैलरी है वो आपकी 7 अक्टूबर से पहले पहले आ जानी चाहिए। दैट सेज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसको हम लोगों ने कोड ऑन वेजेस एक्ट में ही सब्ज्यूम कर लिया था, बट सिचुएशन जो है सेम रखी थी, उसमें भी सेम था और नए वाले में भी सेम है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एट लीस्ट वंस इन एवरी डैश ईयर्स। कि जैसे हमने डिस्कस किया था मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको हम लोगों ने सब्ज्यूम कर लिया था अगेन कोड ऑन वेजेस में। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तो होगी आपकी फ्लोर वेज और एक होगी आपकी मिनिमम वेज। फ्लोर वेज को डिसाइड करने का जो अधिकार है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हर स्टेट में पूरे इंडिया में इस वेज से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी ही है, दैट फ्लोर वेज शुड बी द स्टैंडर्ड। और उसके तहत जो अलग स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से क्या डिसाइड करती थी, मिनिमम वेजेस डिसाइड करती थी। तो क्वेश्चन ये है कि कितने साल में मिनिमम वेज जो आपने रखी है अभी उसको आप रिवाइज करेंगे, कि 5 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं, अब वेजेस को चेंज करने का टाइम आ गया है। तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 एंड 5। जो आपका ये एक्ट था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 या फिर कोड ऑन वेजेस, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिवाइज करेंगे नॉट मोर देन 5 years आफ्टर, कि 5 साल के बाद जो है बेसिकली आपको ये रिवाइज करना ही पड़ेगा, नॉट मोर देन 5 years। तो ये 5 years का आंसर है आपका, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो हमने फ्लोर वेज और मिनिमम वेज को डिस्कस किया था, साथ में ये ईयर भी देखा था, तो ये सीधा क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following is typically a written document that defines what work will be accomplished by the end of the project?
जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तब बेसिकली आप ये बताते हैं कि इस काम को करने के बाद बेसिकली आपने क्या अकम्प्लिश किया है। ये प्रोजेक्ट जो आपको मिला है इसकी जब एंड हो जाएगा तो आप क्या अकम्प्लिश करेंगे, ये जो चीज़ है ये किस रिटन डॉक्यूमेंट में आप बेसिकली बताते हैं। ऑप्शंस हैं आपके स्कोप ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट लॉजिक डायग्राम, माइलस्टोन शेड्यूल या फिर डी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। देखो जो नॉर्मली आपका ये माइलस्टोन शेड्यूल है ये तो शेड्यूल है कि आपने किस तरीके से ये काम इतने टाइम फ्रेम में करना है। जो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है कि इस काम को करने के लिए अलग अलग जो पर्सन्स हैं वो क्या क्या काम करेंगे ताकि एंड काम का इजीली हो सके। प्रोजेक्ट लॉजिक डायग्राम कि बेसिकली प्रोजेक्ट को हमें अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आपको किस लॉजिक से चलना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें प्रैक्टिकल लेकर आनी पड़ेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली आपके वर्क की, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। स्कोप ऑफ द वर्क बेसिकली ये कहता है कि जब आप ये काम ख़त्म कर देंगे तो बेसिकली आप क्या अचीव करेंगे, इस काम को करने के बाद क्या क्या चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर आपके सामने आएंगी। दैट इज़ द स्कोप ऑफ द वर्क कि हमें एक्चुअली करना क्या है, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो आंसर ए, सोल्यूशन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच टूल्स आर यूजफुल फॉर अ सिचुएशनल एनालिसिस प्रायर टू प्लानिंग अ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। अगर आपने कोई प्रोग्राम शुरू करना है अभी तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऑप्शन है आपके स्टेक होल्डर एनालिसिस, जो भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं या उस प्रोजेक्ट से किसी को भी अगर इम्पैक्ट पहुंचेगा कोई, चाहे वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। ओके। सेकंड, स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। ओके। सी इज प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस कि बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपके रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है इसको बेसिकली, तो भी आप इजीली इसको सही कर सकते थे कि हाँ तीनों ही चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि हम प्रोजेक्ट को बढ़िया एफिशिएंसी के साथ पूरा कर सके, है ना। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स वाज इंक्लूडेड इन। ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो कि ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस, अगर कोई गलत काम कर रहा है या फिर एम्प्लॉयर कोई गलत काम कर रहा है तो वो किस एक्ट के अंडर बेसिकली डिफाइन किए गए हैं। ऑप्शन है आपके फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट या फिर नन ऑफ दिस। देखो ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, चेतन सर ने आपकी जो एमसीक्यूज लिए थे यहाँ पर उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन उन लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर है अगर हम देखें तो हमने शेड्यूल भी देखा था कि जो शेड्यूल 5 है ना वो बेसिकली यही कहता है कि जो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए या फिर वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसके हमने देखे थे कि ऑप्शन बी इज द आंसर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो डिस्प्यूट्स एक्ट में तो था, ये तो क्लियर था, साथ में शेड्यूल भी हम लोगों ने आपको बताया था। इसमें कई सारे शेड्यूल्स थे, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड एंड थर्ड या फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्वेश्चन आपका 5th शेड्यूल पर आया है ना। तो आंसर इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइंस फैक्ट्री। मैंने कहा था ना कि उस टाइम पे जो कि फैक्ट्री का सेक्शन भी हम लोगों ने किया था और साथ में विद द एड ऑफ द पावर, विदाउट द एड ऑफ द पावर के वर्कर्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो सीधा क्वेश्चन आपका एक ही सेक्शन से उठकर आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने मतलब अगर वो क्लास 10 मिनट की भी देखी थी तो फिर उनका क्वेश्चन इजीली सही हो जाता। ऑप्शन है आपके सेक्शन 2H, 2K, 2M या फिर 2N। तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं इसको ऑलरेडी। तो सेक्शन 2M इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ESI एक्ट। ESI एक्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी पर्सन को कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट है या फिर वो बीमार हो गया है, डिसेबल हो गया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंश्योरेंस आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके ऑप्शन है आपके कि इसमें कौन सा प्रोवाइडेड नहीं है। ऑप्शंस में है नॉट। ऑप्शन है आपके सिकनेस बेनिफिट,
कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या आपको इस एक्ट के तहत सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की आपकी अगर सैलरी चली जाती है तो हमने एक स्कीम भी की थी, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो स्कीम है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय दिस ESI एक्ट 1948, जहाँ पर अगर किसी की जॉब चली जाती है तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे। तो दैट इज़ दी ट्रू। सेकेंड, थर्ड इज चिल्ड्रंस अलाउंस एंड डी इज़ द डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो ये जो एक्ट है ना, ये हमने जब डिस्कस किया था तो हमने स्टार्टिंग में इसका क्रक्स निकाल लिया था कि ये एक ऐसा एक्ट है जहां पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको अनसर्टेनिटीज़ के लिए आप इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम लोग आपके साथ हैं, हम आपकी पैसे वाइज या फिर कोई और किसी भी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो ऑप्शंस देखो, ये सिकनेस बेनिफिट तो होना ही चाहिए क्योंकि बीमार पर्सन हो सकता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के भी, डिसेबिलिटी के भी। बट चिल्ड्रंस अलाउंस ऐसा है जो कि इसमें खास सा नहीं लग रहा है क्योंकि ये मिलता भी नहीं है एक्चुअली। तो चिल्ड्रंस अलाउंस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, उसकी बात तब आएगी जब ये मिल रहा होगा अंडर दिस एक्ट। ये मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following legislations extends some sort of the benefit to retired employees also? मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ये हमने डिस्कस किया था कि जो फीमेल है उसको 26 वीक्स की मटर्निटी पेड लीव्स दी जाएंगी जब वो काम कर रही है एक्चुअली। तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के केस में अगर आप ये बोलो कि आपको मटर्निटी के लिए पेड लीव्स चाहिए तो फिर वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि पिछले साल किसी भी विमेन को 80 डेज कम से कम उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करने होना चाहिए। तो दैट इज नॉट द आंसर। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन एक्ट बेसिकली वही था कि जिसमें अगर आपकी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपकी किसी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है ना इंडस्ट्री में ही, तो फिर आपको या आपकी फैमिली को किस तरीके से हम लोग कंपनसेट करेंगे, उनको पैसे टर्म्स में या फिर कोई और सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देकर, है ना। तो यहाँ पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की तो बात कर ही नहीं रहे हैं हम लोग, यहाँ पर तो हम उसकी बात कर रहे हैं अगर आप काम के दौरान डिसेबल हो जाते हैं या फिर आपकी डेथ हो जाती है। थर्ड है आपका एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखो यही था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ESI एक्ट का जो क्रक्स है वो यही है कि अल्टीमेटली किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहे हैं या आपके घर में कोई दिक्कत है, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है या फिर आपकी एज भी हो गई है, तो जितने भी आपके सिचुएशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे अंडर दिस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एंड लास्ट है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस तो रिटायर ही हो गए तो बोनस कहाँ से मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाता है आपका इजीली। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट, The Payment of Bonus Act 1965 is applicable to every factory and to every other establishment where dash workmen are employed on any day during an accounting year। कि कितने लोग होंगे किसी establishment में तब जाकर किसी भी फैक्ट्री पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस आपके 20 और मोर, 10 और मोर, 50 और मोर या फिर 30 और मोर। हमने जब कोड ऑन वेजेस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो 4 बिल्स हैं वो एक कोड ऑन वेजेस के अंदर सब्ज्यूम किए गए थे। वन ऑफ द एक्ट वाज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो जो कोड ऑन वेजेस में हम लोगों ने पढ़ा था सेम टू सेम चीज़ें आपने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी इम्प्लीमेंट करनी थी, बिकॉज चेंज नहीं किया गया था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही बहुत सिमिलर तरीके से बनाए गए हैं, सिर्फ सब्ज्यूम किया गया है, काफ़ी चेंजेस नहीं लेकर आए गए हैं। तो वहाँ पर भी जो आपका कोड ऑन वेजेस था या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है दैट इज ए ऑप्शन 20 और मोर, जहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो बोनस है वो एटलीस्ट 8.33% ऑफ अ पर्सन वेजेस होना चाहिए या फिर ₹100 विच एवर इज हायर, और या फिर कोई भी जो पर्सन है वो अपनी एनुअल वेजेस का कितना मैक्सिमम बोनस गेन कर सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो दैट वाज 20% ऑफ द एनुअल वेजेस। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी ऑन दी कोड ऑन वेजेस एक्ट। देखो बहुत क्वेश्चन आए यहाँ पे कोड ऑन वेजेस पर से कि मतलब कौन सा सब्ज्यूम किया गया है, क्या प्रोविजन से हैं या फिर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए हैं, कितने टाइम और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना है,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस कर लिया था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इस कोड ऑन वेजेस एक्ट से। चलो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम ग्रेच्युटी, कि आपकी सर्विस को कितना टाइम हो जाना चाहिए जिसके लिए आप ग्रेच्युटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑप्शन है आपके 15 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर या नो सच प्रिस्क्रिप्शन। देखो क्वालिफाइंग सर्विसेज है कि अगर इतने सर्विस के साल हो गए हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी ही मिलेगी। हमने देखा था कि जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये 5 ईयर्स थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें हल्का सा चेंज किया गया है कि जो आपके वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनका जो ग्रेच्युटी क्लेम करने का टाइम पीरियड है दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड टू 3 ईयर्स। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। तो ये बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब एज इट इज स्टेटमेंट उठा के ना पेपर में डाल दी गई हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो आपके सही होने चाहिए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि 2 बार रिपीट हो रखा है, तो वो हमने 2 बार नहीं डिस्कस किया, एक ही बार डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यू कैन टेल अस, यू कैन कमेंट, यू कैन कॉल, यू कैन मैसेज अस। बाकी आई एम होपिंग कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, पढ़ाए हुए में से आया है काफ़ी सारा। तो रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। हाँ जी बच्चे, हुण आपां डिस्कस करांगे जीके रिलेटेड क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे ईटीआई दे पेपर 'च आए सीगे। फर्स्ट क्वेश्चन, शिखर से पुकार इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू विच टॉपिक? गर्ल्स एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एयर पोल्यूशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा बी, वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the administrative authority controlling the juvenile justice board? JJ एक्ट आया सी, juvenile justice एक्ट आया सी, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ juvenile justice board establish ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ juvenile justice board ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। Next, who has won the 2021 US Open men's single title? US Open 2021 ਦਾ ਕਿਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਐਂਡੀ ਮੁਰੇ, ਸਟੈਨ ਵਾਰਨਕਾ, ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋविच ਜਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਡਵੇਡੇਵ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਡਵੇਡੇਵ। Next, a person who can see nearby objects clearly but cannot see distant objects. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ना देख पाता होवे, मतलब रेटिना तो अगे उसकी इमेज बन जाती है, उन्होंने आप की कहने हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, मायोपिया या प्रेसबायोपिया। करैक्ट आंसर है दा मायोपिया, जिन्होंने शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। रेटिना तो अगे ही इमेज बन जाती है, वो जो रेज होंदियां रेटिना तक पहुँचदियाँ ही नहीं गया। शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड? कॉफ़ी, नीम, राइस, टी। ऑप्शन सीगियां ग्रीन गोल्ड, ये कहते हैं टी नूं ल्यूक्रेटिव टी ट्रेड करके जिहड़ा कैश एक्यूमुलेट करती सी पहला, जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी इस तो अर्न किया, उत्थों यह निकलिया ग्रीन गोल्ड टी। नैक्सट, हु वॉज द चीफ इंस्पायरेटर ऑफ कूका मूवमेंट? इंस्पीरेशन किहदे तो डिराइव की है? लाल सिंह, राम सिंह, संत सिंह या बालक सिंह। ईजी क्वेश्चन सीगा, इसका आंसर है बी, राम सिंह। Next, between which of the following pair of rivers does the दुआबा region in Punjab fall? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ ਜਾਂ ਜੇਹਲਮ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, that's the Doaba region. Next, which tree part of Acacia nilotica is used for tanning purpose? Tanning ਲਈ ਕਿਹੜਾ part of this tree, Acacia tree use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? bark, leaves, seed ਜਾਂ branch। correct answer ਹੈ ਇਹਦਾ bark। Next, which Mughal emperor kept Guru Hargobind Ji in captivity at the fort in Gwalior? ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ।
Next, through what sort of songs female relatives from bride side make fun of the relatives of the groom sides? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਾਂ ਛੰਦ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, who among the following is known as father of fiber optics? Father of fiber optics ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ S.K. ਸਿੱਕਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਪਨੇ, ਸਬੀਰ ਭਾਟੀਆ ਜਾਂ I.K. ਗੁਜਰਾਲ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਪਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਬੈਂਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੈ। Who was the commander-in-chief of Punjab during first Anglo-Sikh War? ਪਹਿਲੀ Anglo-Sikh War 1845-46 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਿਸਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ A ਐਂਡ B ਆਪਸ਼ਨ ਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਮਿਸਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ, ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੋਕੇਟਡ? ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਈਜ਼ੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ B ਲੁਧਿਆਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਝੂਮਰ। ਝੂਮਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? A dance by women, an old way of cultivation, a dance by men, an ornament of the head for women? ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਝੂਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਂਸ ਬਾय ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਬਾय men. C is the right answer. On which theme of the novel by Nanak Singh, a famous Hindi film was also produced? मतलब नानक सिंह ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਲਕੀ ਕੀਮਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਰਾਘਵ ਸਰ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਰਾ ITI ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ टीचर्स नाल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर endeavors. थैंक यू। वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप कि सबका ETI का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। तो आज हम पेपर की डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा पेपर हुआ था 3/10/2021 को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 279? कि इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब इन चारों में से क्या है सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है जो 279 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो? ठीक है, और इन चार ऑप्शंस में नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, यानी कि जो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 279 से डिविजिबल होगा वो इन ऑप्शंस में ही है। तो सबसे पहले मैं 279 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करता हूँ। मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो 9 3 का 27, 9 1 का 9, यानी कि जो नंबर 9 एंड 31 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 279। तो इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले 9 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में मैं चेक करता हूं क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 9 के टेबल में आता है, 9 आता है, 6 + 3 9। यस, इनका टोटल जो है वो 9 का मल्टीपल बन जाएगा। सम ऑफ द डिजिट 9 के मल्टीपल बन जाएंगे, 27 आ जाएगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये 31 से डिविजिबल है या नहीं है वो बाद में चेक करते हैं। सेकेंड नंबर चेक करते हैं, 9 + 9 18, 5 + 5 10, 18 + 10 28। नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अगर ये नंबर 9 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 279 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज नॉट द आंसर। सी ऑप्शन की बात करते हैं, 9 + 9 18, 18 + 10 28 + 8 36। yes, 36 is divisible by 9। तो this number also divisible by 9। ये भी हम बाद में चेक करेंगे कि ये नंबर 31 से डिविजिबल है या नहीं है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, 9 + 9 18 + 2 20, 20 + 6 26, 26 + 6 is 32। नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन मेरे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, बी एंड डी।
ये दोनों नंबर 9 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 279 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, 99603 एंड सेकेंड ऑप्शन इज 99882। दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना था, तो मैं इन दोनों में से सबसे पहले ग्रेटर नंबर यानी कि 99882 को चेक करता हूं कि 99882 जो है, क्या ये नंबर 31 से डिविजिबल है? तो इसको 31 से डिवाइड करते हैं। 31 3 का 93, मेरे पास आ गया माइनस करके 6 8, 31 2 का 62, मेरे पास माइनस करके आ गया 6 और यहाँ पे अगेन 8 आ गया, अगेन 2 पे 62 आ गया, माइनस किया 6 आ गया, 2 यहाँ आ गया 62 हो गया, 31 2 का 62 आ गया। यस, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 31, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, तो दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 279। और मुझे ये स्मॉलर नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेटर नंबर पूछा था। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, when a sum of money was distributed to 12 persons instead of 16 persons, each person got 400 rupees more, what was the sum? यानी कि हमारे पास मनी कितनी है, मुझे मनी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मनी इज गिवन इन द ऑप्शन, मनी मुझे ऑप्शंस में गिवन थे, यानी कि जब मैं ऑप्शन को 12 से डिवाइड करूंगा, ध्यान देना बच्चे मैं ऑप्शंस यूज कर रहा हूं, जब मैं ऑप्शन को 12 से डिवाइड करूंगा तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 होनी चाहिए। दूसरी बार अगेन, अगर मैं ऑप्शन को 16 से डिवाइड करता हूं, यानी कि जो सम है मनी है, अगर मैं वो 16% में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो दैट मनी ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए, और मेरे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 400 होना चाहिए। 400, क्योंकि हमें क्या कहा था कि अगर मैं मनी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 12 पर्सन में इंस्टेड ऑफ 16 पर्सन, पहले मनी में 16% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अब मैं 12% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो हर पर्सन को 400 रुपीज जो है वो ज्यादा रिसीव होंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 400 होना चाहिए। जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी दैट ऑप्शन इज द आंसर, वो ऑप्शन मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे अगर चॉइस उठाता हूं, मैं कहता हूं कि क्या ये नंबर 12 का डिविजिबिलिटी की बात करते हैं 3 और 4, और 16 के डिविजिबिलिटी के लिए मुझे डायरेक्ट 16 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करता हूं, क्या ये नंबर हमारे पास 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है? यस। क्या ये नंबर 16 से भी डिविजिबल है? यस। सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूं, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नो। तो इसको मैं अपनी चॉइस में सबसे लास्ट में रखूंगा कि दिस नंबर जब 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12। इस नंबर को, इस सम को 12 से डिवाइड करके मेरे पास डेसिमल्स में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इस नंबर को 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1000 आएगा, ठीक है। और यहां पे मेरे पास 1400 आना चाहिए था, तभी दोनों का डिफरेंस 400 हुआ, बट इस नंबर, ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरी एलिमिनेट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं 19200 की बात करता हूं तो दिस नंबर जो है 9 10 2 12, यस, ये 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखता हूं 8 + 4 12 + 1 13, दिस नंबर अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब मैं सबसे पहले चेक करता हूं अपनी ए ऑप्शन को कि मैं यहां पे 14400 डिवाइडेड बाय 12 करता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1200, ये आ गया। अब मैं सेम नंबर को 14400 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 16 9 का 0 का 0 का 1200 में से अगर मैं 900 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 300 का आता है। इट मीन 14400 इज नॉट द आंसर, मेरे पास 300 मोर आता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नॉट आंसर, बी ऑप्शन नॉट आंसर, डी ऑप्शन नॉट आंसर, ए की ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं कि हमारे पास है, मैं इसको चलो मैं 19200 इसको चेक करते हैं। ऑप्शन 19200 डिवाइडेड बाय 12,
माइनस 19200 डिवाइडेड बाय 16। तो 12 1 का 12, 72, 12 6 का 00, ये आ गया। माइनस यहाँ पे 16 1 का 16, 32, 16 2 का 0 का 0 का 1600 में से अगर मैं 1200 माइनस करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास 400 आएगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन मेरे पास जो आंसर है दैट इज, जो सम है दैट इज 19200, यानी कि क्या आंसर है हमारे पास? सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारी आंसर है 19200। ये आपको चेक करके बताया। अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट 3 ऑप्शन से एलिमिनेट होगी, 4th ऑप्शन इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है कि इन तीनों का सम जो है वो 11 है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस, ये फार्मूला मेरे पास। अब मुझे इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी 20 गिवन है, बट मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? a प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 11, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर दैट इज 121। यहां पे मैं ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू 20 पुट कर दूं तो 20 इंटू 2 40 हो गया। 40 को राइट साइड पे जाके मैं माइनस कर देता हूं। 121 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा मेरे पास 81 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू मेरे पास 81 आ गई। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी? द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 इंटू ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 81 माइनस, इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे पास 20 है। 81 में से हम 20 माइनस करते हैं, 61 आ गया इंटू 11, तो 61 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास 671 जो है वो आंसर आ जाएगा। इट मीन कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 671। What is the answer? The answer is C option 661. Sorry 671. C option. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar, मुझे इनकी एजेस की रेशियो दे रखी है 6:5, यानी कि कुणाल की एज अगर मैं 6x लेट करता हूं और सागर की एज मैं 5x लेट करता हूं 6 years ago, this one, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी मेरे पास 6x प्लस 6 एंड 5x प्लस 6, ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। ये 6 year ago 6 साल पहले की एज है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। आगे मुझे क्या गिवन था? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी कब? 4 years hence, आज से 4 साल बाद, यानी कि 4 years hence इनकी एज कितनी हो जाएगी? इस वैल्यू में 4 प्लस कर लेते हैं तो 6x प्लस 10 आ गया। इस वैल्यू में भी 4 प्लस कर लेते हैं, 5x प्लस 10 आ गया। ये कुणाल की एज, ये सागर की एज, और इन दोनों की एज की जो रेशियो है दैट इज 11:10, यानी कि ये दोनों एजेस की जो रेशियो है दैट इज 11:10, ये आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आ गई मेरे पास 6x प्लस 10 रेशियो मीन डिवाइड 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
10 से मल्टीप्लाई किया 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 55x प्लस 110। 55 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो गया, 60 माइनस 55 5x इज इक्वल टू 100 राइट साइड जाके माइनस हो गया, 110 माइनस 100 इज 10। द वैल्यू ऑफ x इज 2। मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। क्या कैलकुलेट करना था? व्हाट इज सागर्स एज इन ईयर्स एट प्रेजेंट। सागर की एज, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है सागर की, दैट इज 5x प्लस 6। यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 6 इज 16। सागर्स प्रेजेंट एज हमारे पास 16 आ जाएगी, दैट इज ए ऑप्शन आंसर। ए ऑप्शन हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 14% of 14 plus 28% of 28 plus 92% of 96 minus 15% of 85। मुझे सॉल्व करना है। व्हाट इज द आंसर? 14% यानी कि 14% हटाया अपॉन 100 इंटू 14 प्लस 28% 28 अपॉन 100 इंटू 28 प्लस 92% 92 अपॉन 100 इंटू 96 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 85 दिस। ठीक है, तो सबसे पहले 14 इंटू 14 में इन दोनों में से 14 इंटू 14 यानी कि 196 डिवाइडेड बाय 100 कॉमन ले रहा हूं। मेरे पास 14 चला गया, 14 चला गया, 100 चला गया, मेरे पास 1 रह गया, प्लस ये 100 चला गया, 14 2 का 28, 14 2 का 28, 2 इंटू 2 4, मेरे पास 4 रह गया, प्लस 92 एंड 96 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 92 इंटू 96, ये 100 से माइनस 8, ये 100 से 4 कम है, माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 4 32 हो गया, 92 में से 4 माइनस किया, हमारे पास 88 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज 8832। 8832 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 को 85 से करते हैं, 15 5 75 7 15 8 120 120 प्लस 7 इज 127 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 4 प्लस 1 5 हो गया, 196 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 196 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1960 का हाफ कर लेते हैं, 2 9 का 18, 2 8 का 0 डिवाइडेड बाय 100, 1980 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8832 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1275 डिवाइडेड बाय 100, 100 एलसीएम आ गया मेरे पास, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इसमें से 1275 माइनस करते हैं, मेरे पास कितना रह गया, 7 प्लस 5 12 2 178 प्लस 5 13 2 प्लस 3 5 एंड 7 7 5 5 7 प्लस 980 करते हैं, 980 इसमें ऐड कर लिया, 7 8 प्लस 5 13 3 1 कैरी 10 15 5 8 5 3 7, तो 8537 डिवाइड बाय 100 इज 85.37 दिस। तो व्हाट इज योर आंसर? 85.37, दैट इज बी ऑप्शन हमारा आंसर है, 85.37 दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, study the question and statement and decide which of the statement is or are necessary to answer the question. By selling an article, what is the profit percent gained? तो मुझे क्या निकालना है? What is the profit percent? मुझे profit percent कैलकुलेट करना है, profit percent कैलकुलेट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है? 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस। Statement number 2, if discount is not given, 20% is the profit and the cost price of the article is rupees 5000, cost price हमारे पास 5000 है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करते हैं, मतलब आंसर्स ऑप्शंस चेक करते हैं। पहली ऑप्शन कह रही है कि ओनली 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, कि अगर मुझे स्टेटमेंट 1 and 2 गिवन है तो मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रही है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट चाहिए मुझे, मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रही है कि 1 and 3 गिवन है तो मैं आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रही है कि 1 2 and 3 सभी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है टू फाइंड द आंसर। तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन का यूज करता हूं कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 है, क्या आंसर आ सकता है? पहली स्टेटमेंट कह रही है कि 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन 20% इज द प्रॉफिट। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट कंसीडर करता हूं कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और प्रॉफिट मुझे दे दिया कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है, ठीक है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? मेरी सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी।
ओके यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस कुछ भी है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस एक्स भी लेता हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट 20% है, द सेलिंग प्राइस इज 1.2x, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है आगे कि अगर डिस्काउंट नहीं गिवन है तो ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अगर डिस्काउंट नहीं गिवन है, नॉट डिस्काउंट, यानी कि इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, अगर डिस्काउंट नहीं गिवन है तो जो हमारी मार्क प्राइस है वही हमारी सेलिंग प्राइस होती है। जो मार्क प्राइस है दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन। ठीक है, यानी कि ये मेरी मार्क प्राइस है, यही मेरी सेलिंग प्राइस है और ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है? 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कि अगर मुझे इस वैल्यू पे अगर मुझे 5% डिस्काउंट गिवन है, फिर क्या होगा? मेरे पास सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो 5% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 0.95 ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, वो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो यानी कि 1.2x ये हमारी मार्क प्राइस है, इसके हमने 0.95 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई और मेरी कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू x। इन दोनों वैल्यू से मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट इज द प्रॉफिट? हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, SP गिवन है, CP गिवन है, मैं दोनों को माइनस कर लूंगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करूंगा इंटू 100, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 दोनों का यूज करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यस, यहां से आंसर आ रहा है। अब मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूं, क्या स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 से आंसर आ रहा है? मुझे स्टेटमेंट नंबर 3 में कॉस्ट प्राइस गिवन है, यानी कि x की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग, और स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग मेरे पास अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है और मेरे पास 1.2x जो है अगर डिस्काउंट इज नॉट गिवन, ठीक है, तो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं दे रखा मुझको तो मेरे पास इन दो स्टेटमेंट से अगर डिस्काउंट है तो आंसर जो है वो नहीं कैलकुलेट होगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन से ओनली 2 एंड 3 से हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अगेन 1 एंड 3 का अगर मैं यूज करता हूं, कॉस्ट प्राइस है, यहां पे मुझे 5% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, यहां से आंसर भी नहीं आ सकता। जब मेरे पास ओनली 1 एंड 2 से आंसर आ रहा है तो ऑल की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल की मुझे जरूरत नहीं है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स, यानी कि हमें टोटल मेल मेंबर्स दे रखे थे 160 एंड सम फीमेल, और फीमेल कितनी है मुझे मालूम नहीं है, तो फीमेल को हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल x लेट कर लेते हैं इन द रेशियो 16:21, यानी कि जो मैंने मनी डिस्ट्रीब्यूट की है वो मनी मेल इज टू फीमेल इज इक्वल टू 16:21 में डिस्ट्रीब्यूट की है। इंडिविजुअली ईच मेल गेट ₹4, एक मेल को 4 रुपीज मिलते हैं और एक फीमेल को 3 रुपीज मिलते हैं। तो अगर एक मेल को 4 रुपीज मिलते हैं तो 160 मेल्स को कितनी मनी रिसीव होगी? तो 160 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय फीमेल, एक फीमेल को 3 रुपीज मिल रहे हैं तो एक्स फीमेल को 3x रुपीज जो है वो रिसीव होंगे, और मेल इज टू फीमेल की जो हमें रेशो गिवन थी मनी की दैट इज 16:21, यानी कि 16/21। हमारे पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, वो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे। कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कटिंग करता हूँ 16 10 का और 3 पे कटिंग करते हैं 3 7 का, ये 7 आ गया, और कोई कटिंग नहीं हो रही हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से इधर मल्टीप्लाई किया, 7 × 10 × 4 इज इक्वल टू x हमारे पास इस साइड आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 4 28, 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया 280 आ गया इज इक्वल टू x, और x हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ फीमेल्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होगी 280। तो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज सी ऑप्शन, हमारा आंसर सी ऑप्शन आ गया। ठीक
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। X can do a piece of work in 24 days when he had worked for 4 days, यानी कि X जो है वो 4 days काम कर रहा है, Y joined him, उसके बाद Y ने उसको ज्वाइन कर लिया। And if complete work was finished in 16 days, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है, Y alone can finish the work in how many days? तो Y alone इस वर्क को कितने डेज में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में हम टोटल वर्क लेट कर लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू हमारे पास एक 16 और 24, अगर मैं एलसीएम लेता हूं मेरे पास 48 यूनिट्स, ये हमने टोटल वर्क लेट कर लिया। तो x 1 डे वर्क कितना हो गया? x 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 डे वर्क इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय x का 1 डे वर्क, सॉरी नंबर ऑफ डेज। x 1 डे वर्क दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ये जितना टाइम वो इस काम को करने के लिए ले रहा है। तो टोटल वर्क मेरे पास 48 है, नंबर ऑफ डेज 24 है, यानी कि x का एक दिन का काम 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स। ठीक है, और y का y इज 1 डे वर्क हमें गिवन नहीं है क्योंकि उसके हमें टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं मालूम है, तो मैं y का 1 डे वर्क y यूनिट्स लेट कर लेता हूं कि y जो है वो एक दिन में y यूनिट्स बना रहा है। नाउ सबसे पहले हमारे पास जो है x वर्क इट फॉर 4 days एंड y ज्वाइंड हिम एंड द कंप्लीट वर्क, यानी कि पूरा काम जो है वो हमारे पास 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि x जो है वो इस काम को 16 डेज कर रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। तो x का 1 डे वर्क दैट इज 2 into 16, दिस वर्क डन बाय x, ये जो है ये x का काम आ गया जो उसने किया है। उसके बाद y इज 1 डे वर्क इनटू y ने कितने दिन काम किया है? 12 डेज काम किया है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क जो था वो 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है, बट y ज्वाइंड आफ्टर 4 डेज, तो y के नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? हमारे पास 12 हो जाएंगे। तो दिस इज द वर्क डन बाय x, दिस इज वर्क डन बाय y इज इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, 1 डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज, 1 डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज, वर्क डन बाय x, वर्क डन बाय y इज इक्वल टू दोनों का सम किया दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो x का 1 डे वर्क 2 यूनिट था, 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, प्लस y का 1 डे वर्क y था 12 डेज में, उसने 12 y काम किया इज इक्वल टू 48। ये 32 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, 48 में से 32 माइनस करते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे 16, तो 12y इज इक्वल टू 16 एंड y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 4 का 4 3 का, यानी कि y का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 4/3 यूनिट्स। y जो है एक दिन में 4/3 यूनिट्स बना रहा है, तो y के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? y कितने दिनों में काम करेगा? नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय y इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना था मेरे पास? 48, और y का 1 डे वर्क कितना है मेरे पास? 4/3। मैं 48 को 4/3 से डिवाइड कर लूंगा, 3 मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 4 12 का 12 3 का 36 डेज, यानी कि y जो है इस होल वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। माय आंसर इज सी ऑप्शन, हमारा आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। At 8:30, the hour hand and the minute hand of the clock form an angle of, तो सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करते हैं। यहां 12 है, इसके बिल्कुल अपोजिट 6 है, यहां पे हमारे पास 3 है, इसके बिल्कुल अपोजिट 9 है, और यहां 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। तो सबसे पहले 8:30 ड्रॉ करते हैं। जब 8:30 है, हमारी मिनट हैंड की पोजीशन जो है वो 6 पे है, और 8 की पोजीशन जो है दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 8 एंड 9। 8:30 8 एंड 9 के बीच में आर हैंड की पोजीशन है, और मिनट हैंड की पोजीशन जो है वो 6 पे है। टाइम 8:30 हो गया, हमारे पास टाइम 8:30 है।
ठीक है। नाउ मुझे इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है कि कितने डिग्री का एंगल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है कि 7 और 6 के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, एंड 7 एंड 8 के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। और 8 जब एग्जैक्टली 8 o'clock थे, हमारे पास आर हैंड की पोजीशन 8 पे थी। आर हैंड को इस पोजीशन पे आने के लिए 30 मिनट्स लगे हैं, और आर हैंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है आर हैंड। तो आर हैंड 30 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? हाफ इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस एंगल इज 15 डिग्री। तीनों का टोटल करते हैं, मेरे पास मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में एंगल आ जाएगा जब हमारे पास टाइम जो था वो 8:30 था। 30 + 30 60, 60 + 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 men और 6 women और 4 बॉय, जब भी बात और की आती है तो हम क्या करते हैं कि 2 men इज इक्वल टू 6 women इज इक्वल टू 4 boys। ये मेरे पास इनका रिलेशन है कि 2 men जितना काम करेंगे उतनी 6 women काम करेंगी, और सेम वर्क जो है वो 4 boys करेंगे। आगे क्या कहा था? कैन फिनिश ए वर्क इन 99 डेज, और ये काम जो है वो 99 डेज में कंप्लीट करते हैं। इट मीन कि 2 men 99 डेज में काम कर रहे हैं, एंड सेम वर्क 6 वुमेन जो है वो 99 डेज लगा रही है, और सेम वर्क जो है वो 4 बॉयज जो है वो 99 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज विल 1 man 1 woman एंड 1 बॉय, और जब भी बात एंड की होगी तो हम प्लस करते हैं कि 1 man + 1 woman + 1 बॉय इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं ये कर लेता हूं कि 2 men जो हैं वो 6 women के इक्वल हैं। ये मैं यहां पे कर रहा हूं 2 men इज इक्वल टू 6 women, तो 1 man इज इक्वल टू, बोथ साइड 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 man इज इक्वल टू 3 women के इक्वल है। तो 1 man की जगह मैं 3 women लिख सकता हूं कि 1 man कितना काम कर रहा है, जितनी 3 women काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 6 women इज इक्वल टू 4 boys, 6 women इज इक्वल टू 4 boys। अगेन अगर मैं बोथ साइड 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड कर लिया तो ये मेरे पास आ गया 1 boy इज इक्वल टू, यहां पे हम 2 पे कटिंग करते हैं तो मेरे पास आ गया 3/2 वुमेन, यानी कि एक बॉय जो है दैट इज इक्वल टू 3/2 वुमेन के इक्वल है। तो 1 बॉय की वैल्यू भी मैं यहां पे 3/2 वुमेन पुट कर लेता हूं। 1 वुमेन एज इट इज आ गई, तीनों को प्लस करता हूं, मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो 3 + 1 4 वुमेन, एलसीएम लिया 4 × 2 8 + 3 इज इक्वल टू 11/2 वुमेन, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 6 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 99 डेज, देन 11/2 वुमेन जो है वो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? हमारे पास फॉर्मूला आता है कि मेन इनटू डेज, ये मैन डेज आ गए, लेकिन इस केस में मैन नहीं है, वुमेन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वुमेन थी? 6 वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे पास? 99। ये मेरे पास वर्क आ गया, मैन वुमेन डेज आ गए, इज इक्वल टू वुमेन 1 × डे 1 इज इक्वल टू वुमेन 2 इज इक्वल टू डेज 2, और मुझे D2 कैलकुलेट करना है। तो 11/2 वुमेन, 11/2 इंटू नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में वर्क होगा। ये 11/2 लेफ्ट साइड जाके 2/11 हो जाएगा। 6 × 99 × 2 डिवाइडेड बाय 11 9 का, तो 9 × 6 54, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 108, यानी कि हमारे पास 1 man 1 woman एंड 1 बॉय इस वर्क को 108 डेज में कंप्लीट करेंगे। 108 डेज। व्हाट इज योर आंसर? 108। द आंसर इज डी ऑप्शन। हमारा आंसर डी ऑप्शन है, 108 डेज। नेक्स्ट देखते हैं।
A man in a train noticed that he can count 21 telephone poles in 1 minute. यानी कि 1 मिनट में मैन ने 21 टेलीफोन पोल्स काउंट किए हैं. If they are known to be 50 मीटर अपार्ट, और ये जो टेलीफोन पोल थे ये 2 पोल्स जो है वो 50 मीटर अपार्ट है. एक टेलीफोन पोल, ये दूसरा टेलीफोन पोल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर. ये आ गया. तो 21 पोल्स के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस होगा? 21 पोल्स के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस होगा? मैं कहता हूं कि ये मेरा सबसे पहला पोल है, ये दूसरा, ये तीसरा, डैश डैश डैश, ये मेरे पास 21st पोल है, ये 20th पोल है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान देना, जब भी मेरे पास 21 पोल्स के बीच के डिस्टेंस की बात होगी तो मेरे पास इन बिटवीन डिस्टेंस जो होंगे वो 20 होंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के बाद वाला डिस्टेंस और फर्स्ट से पहले डिस्टेंस हमने काउंट नहीं करना. 21 थिंग्स के बीच में जो स्पेसिस होंगी दैट इज 20 स्पेस होंगी. तो 20 को एक स्पेस हमारे पास 50 मीटर की है, तो 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1000 मीटर. यानी कि 21 टेलीफोन पोल्स, फर्स्ट एंड लास्ट पोल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 1000 मीटर. ये मेरा डिस्टेंस है. ट्रेन जो है वो 1000 मीटर डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट में कवर कर रही है. 1 मिनट में ट्रेन ने 1000 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है. क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द ट्रेन ट्रैवलिंग. मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस हमारे पास है 1000 मीटर, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम हमारे पास है 1 मिनट, कन्वर्ट मिनट इनटू आवर्स, हमारे पास आ जाएगा 1/60 आवर्स आ जाएगा. ठीक है, 60 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन. द आंसर इज सी ऑप्शन. आंसर हमारा सी ऑप्शन है. द आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, कि 6 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, तो इट विल इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्वल कितने ईयर्स में होगा? तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था कि 6 ईयर का इंटरेस्ट, तो यहां पे हम प्रिंसिपल को x लेट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 6 ईयर का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये मेरे पास जो है ये 6 ईयर का इंटरेस्ट आ गया. और ये जो 6 ईयर का इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 30x अपॉन 100. तो इस इक्वेशन से मेरे पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा. तो व्हाट इज द रेट? R इज इक्वल टू 30x अपॉन 100. ये 100 राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 एंड x राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, 6 इंटू एक्स. तो यहां से मेरे पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा. रेट मेरे पास जो है वो 5% आ जाएगा. रेट इज इक्वल टू 5%. दिस वन मेरे से क्या पूछा था कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितने इयर्स में इक्वल हो जाएंगे? इट विल इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितने इयर्स में होगा. यानी कि इन दिस केस मेरे पास अगर प्रिंसिपल की वैल्यू x है, मेरे पास इंटरेस्ट की वैल्यू भी x होनी चाहिए. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू मेरे पास जो रेट है दैट इज 5%, और जो मेरे पास टाइम है वो मुझे कैलकुलेट करना है. तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल टू ये 100 लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 एंड x इधर जाके डिवाइड हो गए. 5 इंटू एक्स, एक्स से x कट गया, 5 20 का. टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर्स. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल 20 ईयर्स में जाके इक्वल हो जाएंगे. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी ऑप्शन 20 ईयर्स. बी ऑप्शन हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं.
ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, बात कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, डबल्स, जो हमारे पास मनी है वो डबल है इट सेल्फ कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में. इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स. तो 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होंगी, डबल मीन अगर प्रिंसिपल जो है वो 1 है तो डबल मीन की अमाउंट 2 हो गया. ठीक है, और अगर मैं यहां पे अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100. मेरे पास टाइम कितना था, 15 ईयर्स, ये आ गया. प्रिंसिपल 1 है, मेरे पास अमाउंट 2 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 15, यानी कि मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर आ जाएगा. मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ गई. नेक्स्ट हमें टाइम पूछा है, चलो टाइम. अब इसने कहा था हमारे पास जो मनी है वो 8 टाइम्स होगी, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ मीन कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 8 टाइम्स, यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 होना चाहिए. ठीक है, अगेन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. मुझे टाइम कैलकुलेट करना है. क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? यस, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 किसके इक्वल था, द वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस वन. ये 2 की वैल्यू है, तो यानी कि हमारे पास टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 3 45 आ जाएगा. मैंने 2 की वैल्यू ये पुट कर दी, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 15 होल रेज टू पावर दिस 3, ये 3 आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. तो 15 इंटू 3 45, ये और ये बोथ साइड से कैंसिल हो गए. टाइम इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 ईयर्स आ गया. व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन चेक करते हैं. व्हाट इज द आंसर, 45 ईयर्स. तो कौन सी ऑप्शन आंसर है हमारे पास, ए ऑप्शन 45 इज द आंसर. ए ऑप्शन मेरा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. A circular road run around a circular garden. ये सर्कुलर गार्डन है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड है, दिस वन. If the difference between the circumference of the outer circle and the inner circle is 44 मीटर, ये डिफरेंस है. तो अगर मैं यहां से इनर रेडियस स्मॉल r और आउटर रेडियस हम कैपिटल R डिनोट कर लेते हैं, तो आउटर सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल R, और इनर सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल r. मुझे दोनों सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो 44 गिवन था. ठीक है, चलो ठीक है. तो मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, मैंने दोनों जगह से पाई कॉमन ले लिया. पाई की वैल्यू 22/7 है और मेरे पास यहाँ पे कैपिटल R रह गया, यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू 44 एंड r माइनस r इज इक्वल टू 44 इंटू ये राइट साइड पे जाके 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 44 एंड 44 कैंसिल हो गए. कैपिटल R में से अगर मैं स्मॉल r माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा. ये कैपिटल R है, यहां से मैं ये स्मॉल r माइनस करता हूं तो मेरे पास ये जो विड्थ है वो 7 मीटर आ जाएगी. सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज सी ऑप्शन. हमारा आंसर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. A swimming pool 9 meter wide and 12 meter long is 1 meter deep at shallow side and 4 meter deep on the deeper side. Its volume in meter cube is. मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मेरे पास जो स्विमिंग पूल है वो कुछ इस शेप का है. ये लेंथ होगी, ये डेप्थ होगी, ये डेप्थ होगी, ठीक है, और ये इसकी विड्थ होगी, दिस वन, ये विड्थ होगी, दिस वन. अब ये जो स्विमिंग पूल है ये शैलो एंड से 1 मीटर डीप है, लेकिन जो डीपर एंड है वहां से 4 मीटर डीप है. तो यहाँ से हमारे पास जो स्विमिंग पूल है वो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ से स्विमिंग पूल जो है वो 4 मीटर है और यहाँ से स्विमिंग पूल 1 मीटर डीप है. ठीक है, ये 1 मीटर, दिस कुछ इस टाइप का स्विमिंग पूल है हमारे पास. मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम इस जो अपर पार्ट है
ये क्यूबॉइड शेप में है, हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इस क्यूबॉइड का। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ जो है दैट इज 12 मीटर, मेरे पास जो इसकी विड्थ है दैट इज 9 मीटर, और जो ये डेप्थ है ये 1 मीटर है, ये टोटल डेप्थ 4 है, तो ये 1 होगी, ये बॉटम वाली 3 आ गई मेरे पास, ये 3 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्यूबॉइड शेप की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ। ये मेरे पास इस क्यूबॉइड पोर्शन का वॉल्यूम आ गया। अब मेरे पास ये जो बॉटम पे एक ट्रायंगल है दिस वन, मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं, तो दैट इज द सबसे पहले एरिया ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का एरिया कर लो कैलकुलेट इनटू दिस विड्थ, उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर लो। तो एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये ट्रायंगुलर पार्ट है, हाफ इंटू 3 इंटू 12, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसको अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मेरे पास बॉटम पार्ट का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों को प्लस करते हैं, आंसर आ गया 12 इंटू 9 दैट इज 108, ये आ जाएगा 2 6 का 12 6 9 इंटू 6 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 3 4 12 2 3 5 15 प्लस 1 16, 162 आ गया, ठीक है। दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास आ गया 62 प्लस 8 इज 70, 270 इज द वॉल्यूम मीटर क्यूब। मुझे वॉल्यूम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना था, तो 270 दैट इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर है इस केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास था पेपर। आई थिंक आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. I welcome everyone to this session on ETI paper discussion. This paper was conducted recently, right? We're discussing the English section. The first question, fill in the blank with suitable preposition. Now, enamored generally takes off, but if it is used in the passive voice, like it is being used here, right? It takes by, right? It means to be carried away with. So, anyone who comes in contact with him is enamored by. So, people are enamored, right? Okay, they get carried away with the impact of his personality. Find out which part of a sentence has an error and mark that part as an answer. One should take advantage. Now, the subject is one. Who should take advantage? One. Of opportunities to talk with native speakers. If one wants to improve not your English, it should be one's English, right? Option D is the correct answer. Fine? Okay. Because the subject is one, not you. Choose the correct meaning of the idiom. This is pretty easy. An achievement to be proud of? No. Be in his bonnet means an obsession about something. Okay. Choose the alternative which can be substituted for the given sentence. To renounce a high position of authority, it means abdicate. When a monarch or a king, right, quits or renounces his authority, we use the term abdicate for that. Select the most suitable alternative in accordance with the correct grammatical rules. Pretty easy, guys. We need to understand that avail is a word that takes off, right? So B, sorry, or C. Now look at C. The manager asked him, or this should have been asked him, how he would avail himself of this opportunity. Okay, in this situation, option B is the best choice for want of a better option, right? The manager asked him how he would avail of this opportunity. Okay, option B is the best choice. Let's move forward. We need to choose the expression from the given alternatives, which is an improvement. A majority of the passengers could have been saved. Now the rule says if we have quote unquote if and could have or would have, right? If, had, quote unquote, first we have if, one word, another word is had, and then we have could have or would have in a sentence. These are paired. So the sentence is already correct. A majority of the passengers could have been saved if the driver had applied brakes in time. This is correct. No improvement needed, right? These are paired. See, if, had, and could have. These are put together. Select the word that is most similar in the meaning to the word given below. Commiseration. It means sympathy. Quite easy, right? Okay. The word which is closest to the opposite in meaning. Senility. Senility means lack of energy,
when we become old and we become unwell, right? So exact opposite is virility. Virility means when we are at the peak and we have a lot of desire for sex, we have a lot of ability to have sex, right? But when we become senile, we become exactly the opposite. Not only sex, actually, it is about our physical strength also that comes considerably down when we are senile. We need to rearrange the parts to form a meaningful sentence here. Okay, so the sentence is, did he realize? Now we need a clause after this. Did he realize what? We need a clause. The clause is introduced by that, right? So there's a pair between R and P. Did he realize that he had been let down? Let down by whom? That is answered by S. Let down by a colleague whom he had stood by all these years. Did he realize that he had been let down? R and P. By a colleague, S, and then Q, stood by all these years, RPSQ, option A. Find the misspelled word, pretty easy. Moderator, this E should have been O. Thank you. I hope you understood all the answers. And how did we discuss, how did we deal with these? If you have doubts, you can get in touch with us. Thank you. ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ETI ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ Dvorak is used with reference to printer, monitor, mouse ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਗਸਟ ਡੋਰਾਕ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਐਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ QWERTY, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੀਬੋਰਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ, ਕੀਬੋਰਡ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ। CPU ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, LAN ਇਜ਼ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, USBs यूनिवर्सल सीरियल बस, और रैम की है रैंडम एक्सेस मैमरी। सो आंसर साडा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ A। ਸੈਕੰਡ, ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ that is installed on your personal computer to collect information about the user is called। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਡਵੇਅਰ, ਮੈਲਵੇਅਰ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੈਕਰ। ਹੁਣ ਸਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, C, ਸਪਾਈਵੇਅਰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ C। ਇਨ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ISP ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर। ISP ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ISP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ISP ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਈਜ਼ੀ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। Dash is a collection of web pages and dash is the very first page that we see on the opening of the website। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that has a number of web pages। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਪੇਜ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ਹੋਮ ਪੇਜ
and dash is the collection of web pages. तो web page आप तो नहीं हो सकता, so answer थोड़ा बन गया B. Website is the collection of web pages and home page is the very first page that you see on the opening of the website. So answer बन गया साड़ा B. Bandwidth. Bandwidth refers to, first option है the amount of the data that can be transmitted through a communication channel. Second, protocol limitations, the speed of the communication device and transmission medium. ਹੁਣ basically when we talk of bandwidth, that means कि internet ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ continuously data ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ data ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ? the amount of that data that can be transmitted through a communication channel, यानी कि किन्ना क डाटा at the same time, मतलब ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, that is called your bandwidth. So answer ਬੜਾ clear cut ਹੈ A, the amount of the data that can be transmitted through a communication channel. communication channel ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो bandwidth ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ A. An example of a peripheral equipment is the printer, CPU, microcomputer या ALU. Peripheral ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ plug in plug out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ CPU ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ALU ਵੀ ਇਹਦੇ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is your peripheral device. So answer ਬਣ ਗਿਆ A. Which of the following represents the fastest data transmission speed? Fastest data transmission किधे होएगा? Bits per second, BPS, gigabits per second, kilobits per second या megabits per second? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MBPS ਸੁਣਦੇ ਆ, KBPS ਸੁਣਦੇ ਆ, that is kilobits not kilobytes. ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਏਗੀ, 500 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਏਗੀ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ ਮੈਗਾਬਿਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਬਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ GBs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ GB ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੀਗਾਬਿਟਸ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ GB, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੀਗਾਬਾਈਟਸ। 1 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1024 ਮੈਗਾਬਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ 1 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1024 ਕਿਲੋਬਾਈਟਸ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਹੈ B. ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ? GBPS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. Functions in MS Excel must begin with the following sign. मैं ਜਦੋਂ ਵੀ MS Excel ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ C. ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Which key can be used to view the slideshow in MS PowerPoint? ਹੁਣ PowerPoint ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ? F5. ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A. ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਟ ਆਫ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।